let's start with chapter number 2, nutrition in animals. So in this chapter, I will tell you about the nutrition in animals, and then I will classify heterotrophs, process of nutrition in amoeba. So let's study about the classification of heterotroph based upon the food these animals consume. There are following type: herbivores, carnivores, and your omnivores. I will tell you then scavengers. I will tell you about herbivores. Herbivores animals are the animals that eat only plant products. So plant products खाते हैं, right? Carnivores जो flesh of other animals खाते हैं. Omnivores जो plants as well as meat दोनों चीज खाते हैं, वो हमको हम omnivores कहते हैं. Right? If I will tell you about scavengers. ये dead और decaying animals होते हैं, वो इस पे feed करते हैं, like vultures, crow and jackal. Now let's study about the process of nutrition. We have 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and digestion. So, first is ingestion. The process of taking food inside the body is called ingestion. जनरली जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने माउथ को फूड मतलब माउथ के अंदर फूड को डालते हैं एंड बट देयर आर अदर एनिमल्स दैट यूज डिफरेंट पार्ट्स लाइक अमीबा वो सूडोफोडिया का यूज करता है टू टेक फूड. फ्रॉग गुड लॉन्ग टर्म जिससे वो इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं. हाइड्रा टेंटिकल्स का यूज करता है एनिमल्स को. देन वी हैव डाइजेशन. सो द फूड कंज्यूम बाय एनिमल्स, जो फूड एनिमल्स कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, इनसॉल्युबल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. और ये नेसेसरी होते हैं टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस यूजिंग डाइजेस्टिव जूसेस, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट डाइजेशन. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. After the food is converted to simple soluble substance, they are absorbed by the body and they are then transported to different parts. इसको हम absorption कहते हैं. Then assimilation, transported substances are used to build fats and protein. उनको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए. किस प्रोसेस के थ्रू, एसिमिलेशन. इजेशन, द अनडाइजेस्टेड फूड और द फूड विच कैन बी ऑफ नो यूज इन द बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं, इजेशन. Right, you will discuss the further nutrition in unicellular and multicellular animals. Now nutrition in amoeba. So we can say that amoeba is a microscopic unicellular organism. It is found in ponds and lakes. ये feed करता है microscopic organism like algae. It has cell membrane and rounded dense nucleus which control all its function. ये constantly what happen? It changes shapes and whenever it senses any food, it pushes out one or more finger-like projection. जिसको हम pseudopodia बोलते हैं. And the food vacuole encloses the food particles within itself with the help of pseudopodia, जो surrounding को help करते हैं to prey and capture it. Right, the process of digestion is carried out by cytoplasms under 2 phases. एक acidic phase में होता है, एक alkaline phase में होता है. Right? Now process of nutrition in human being. Much of the food we eat consists of particles that are too big to pass through the cell membrane. जो फूड है उसको हम पहले तोड़ते हैं किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, जिससे पहले हम उसको डिफ्यूज करते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाइजेशन. देन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन. द फूड कंज्यूम्ड इज पास्ड फ्रॉम योर माउथ टू द एनस थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल करते हैं. राइट, जैसे माउथ हो गया, बदल कैविटी, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन. एंड द ग्लैंड्स जो एसोसिएटेड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो 3 ग्लैंड्स है, सलाइवरी, लीवर एंड पैनक्रियास. देन लेट्स स्टडी अबाउट माउथ एंड बकल कैविटी. सो द प्रोसेस ऑफ इंटेक. देखो जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको हम इंजेक्शन कह रहे हैं. सो ह्यूमन बींग्स हैव माउथ फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड. वी मस्ट हैव नोटिस अ वाटरी लिक्विड इन माउथ. जब भी हम देखो ना जब खाना बहुत टेस्टी होता है तो हम एक पानी आ जाता है. सो द माउथ इन द बकल कैविटी कंटेन्स टीथ. इसमें टंग होती है और सलाइवरी ग्लैंड होती है. सो व्हाट इज टीथ? द टीथ ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस को हम मैस्टिकेशन कहते हैं. और ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ टीथ डेवलप करते हैं लाइफ टाइम. एक तो क्या होते हैं आपके मिल्क टीथ और दूसरे कौन से होते हैं, परमानेंट टीथ. जब मिल्क टीथ टूट जाते हैं उसके बाद आते हैं. बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोल्स. इंसिजर्स फ्रंट टीथ होते हैं, इनको हम ये बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, ये कटिंग और बाइटिंग के लिए यूज होते हैं. नेक्स्ट इज कैनाइन. ये लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होते हैं ईद में, ये कटिंग और टीयरिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं. राइट. प्रीमोलर्स ये आपके एक तरीके के साइड ऑफ जॉ में होते हैं, 3 मोलर्स होते हैं. राइट. सो लेट्स सी
About how many teeth do we have? Incisor 4 होता है मिलके, permanent 4, canines 2 इनको biting कहते हैं, इसको cutting, प्रीमोलर्स 4 को ग्राइंडिंग कहते हैं, और जो मोलर्स होते हैं वो आपके मिल्क में नहीं होते, वो परमानेंट में आते हैं, 6 होता है, इनको हम ग्राइंडिंग टीथ है। नाउ डेंटल केयर, देखो टूथ डिके और कैविटी फॉर्मेशन से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डेंटल प्रॉब्लम होती है, जो फूड पार्टिकल्स दैट वी ईट समटाइम्स गेट स्टक बिटवीन टीथ, वो दांतों के अंदर फंस जाता है। सो इफ यू डू नॉट ब्रश टीथ रेगुलरली इट्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ येलोइश सब्सटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं ना हमारे मुंह में प्लेग लग जाता है, राइट। दिस लीड्स टू डिजीज कॉल्ड पायरिया, पीपल सफरिंग फ्रॉम पायरिया, उनके थोड़े शाइनी ब्राइट और येलो टीथ हो जाते हैं, ठीक है, आप देखेंगे थोड़े येलो येलो होते हैं, ब्राइट होते हैं, शाइनी होते हैं, राइट। सो लेट्स स्टडी अबाउट द डाइजेशन इन फूड। सो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स विद टीथ, किससे स्टार्ट होता है, टीथ से। सो ड्यूरिंग द फिजिकल डाइजेशन टीथ ब्रेक फूड, जो टीथ्स होते हैं वो फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, राइट। एंड द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, जिसको हम सलाइवरी एमलाइज कहते हैं, जिसमें केमिकल डाइजेशन जो होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वी हैव टंग, इट इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑन द बॉटम ऑफ बकल कैविटी, जिसको हम जब हम खाना टेस्ट करते हैं वो किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टंग ओनली। द सरफेस ऑफ टंग इज क्वाइट टफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेनी बम्प्स, जिन्हें हम टेस्ट बड्स कहते हैं। Now salivary gland, they are located in the mouth. There are 3 pair of large salivary gland, right? The salivary gland secretes water liquid called saliva into buccal cavity, and saliva keeps mouth moist. Saliva कैसा रखता है, mouth को moist रखता है, and the slightly digested food is swallowed, and where does it goes? It goes to your esophagus. Now what is esophagus? It is a food pipe. ये एक food pipe है, right. It is pushed by a tongue into a short muscular called pharynx, which is food goes into long narrow muscular tubes को हम food pipe कहते हैं। ये आपके माउथ थ्रोट से दोनों से कनेक्टेड होती है। दिस मूवमेंट ऑफ द वॉल और मसल्स ऑफ ओसोफेगस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टलाइसिस। देन वी हैव स्टमक, the food is now passed into stomach immediately. The stomach, which is J-shaped thick wall pouch, is located on the left side of the abdomen, which is 12 inches long and 6 inches wide, right? Some of the lining releases mucus, जो आपके stomach wall को acid से protect करती है, right? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो फूड के साथ आपकी बॉडी में जा रहे हैं, उनको क्या करता है, उनको एक मीडियम बनाता है, विच इज स्टमक एसिड। स्मॉल इंस्टेंटाइन, लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये 7.5 मीटर लॉन्ग है, ये आपके एब्डोमेन में लोकेटेड है, राइट। मेनी डाइजेस्टिव प्रोसेस आर कैरिड आउट इन द ऑर्गन। अच्छा, एक सेमी सॉलिड पेस्ट है जो एंटर करता है आपके स्मॉल इंस्टेंटाइन में, और वो मिक्स करता है इंस्टेंटाइन जूसेस के साथ। यहाँ पे 2 ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज लीवर। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइजेशन पाथवे ऑफ द फूड, ठीक है, वो स्टमक में जाएगा, फिर आपके स्मॉल इंस्टेंटाइन में वाटर मिनरल सॉल्ट सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, राइट। ये आपका लार्ज इंस्टेंटाइन हो गया, और ये एनस एंड रेक्टम फ्रॉम वेयर द वेस्ट मटेरियल कम्स अप। देन वी हैव लिवर, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जिसका वेट 3 kg इन एडल्ट ह्यूमन होता है। ये थोड़ा रेडिश ब्राउन होता है, ये आपके कहाँ सिचुएटेड होता है, पर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में, ठीक है। ये बाइल जो सीक्रेट करता है येलोइश ग्रीन इन कलर होता है, ये डिफरेंट जो फैट के पार्टिकल्स होता है उसको तोड़ता है। नाउ पैनक्रियाज, इट इज लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड विच इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ये पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, जो कैसे एक्ट करता है, एज अ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, और उनको किसमें चेंज करता है, सिंपलर फॉर्म में। देन कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, और जो फैट आपका होता है वो किसमें ब्रोक होता है, फैटी एसिड्स या फिर ग्लाइसरॉल, राइट। प्रोटीन किसमें ब्रोक हो जाते हैं, अमीनो एसिड में, और मिनरल और विटामिन जो आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको भी आपको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। नेक्स्ट इज एब्सॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन वेयर इट अकर्स इन स्मॉल इंस्टेंटाइन, एंड इनर बॉल ऑफ स्मॉल इंस्टेंटाइन has million of finger-like projection or folds called villi. Each villi has network of blood vessels और small capillary tubes जो close to its surface होते हैं,
देन द विलेज और आपकी इनर वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो उनका सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, और जो एग्जॉस्ट फूड होता है वो कैरी टू द सेल्स फ्रॉम द बॉडी बाय द ब्लड. The blood carries absorbed digested food from small intestine to different organ when it is used to build complex substances. Then इस process जब stage होती है final stage को हम assimilation कहते हैं. Then we have large intestine, the undigested and unabsorbed food is passed from the small intestine into large intestine और वो 1.5 मीटर लेंथ में होता है. ये वाटर और सॉल्ट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स. देखो कुछ एनिमल्स होता है जो पहले खाने को खाते हैं फिर वापस बैग अपने माउथ में लाते हैं फिर उसको चबाते खाते हैं, उनको हम र्यूमिनेंट्स बोलते हैं. हर्बीवोर जैसे काऊ, बफेलो, गोट, शेप ये प्लांट ईटर होते हैं. ये ग्रास पे, प्लांट्स पे, लीव्स पे, स्टेम्स पे फीड करते हैं. सो सच एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स. उनका जो प्रोसेस होता है चूइंग द स्वैलोड फूड जिसे हम कड कहते हैं उसको र्यूमिनेशन कहा जाता है. सो द ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव यूनिक वे ऑफ डाइजेस्टिंग देयर फूड जिसको जो रिच इन सेलुलोस और फाइब्रस होता है. एंड द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स हैव 4 चैम्बर्स. एक तो आपका रूमन होता है, दिस इज रूमन एंड दिस इज योर ओबेस्वेसम, दिस इज रैक्टिकुलम एंड दिस इज एसोफेगस, ओमेसम एंड दिस इज इंस्टेंटाइन. Right? These are the 4 different things that we see over here. Now, we will start with exercise of the chapter. Now, let's start with multiple choice question. First is fat is completely digested in the. कहाँ digest होता है? Stomach में. Water from undigested food is absorbed mainly. जो water आपका undigested food से होता है mainly वो कहाँ store हो जाता है, कहाँ absorb हो जाता है, sorry, large intestine. Absorption of food takes place. जो खाने का absorption होता है वो कहाँ पे होता है? It takes place in your small intestine. Next is I carry digested food to all the parts of body. Who I am? Blood. Bile juice is produced by. Bile juice किस कौन produce करता है? Pancreas. Next is milk teeth last till about 6 years old. जब तक बच्चा 6 साल का होता है तब तक ही होते हैं. Now let's study about fill in the blanks. The process of taking in food inside the body is called ingestion. The largest gland in human body is सबसे largest gland कौन सा होता है? That is liver. Amoeba digest its food in the pseudopodia. कहाँ करता है? Sorry, it's food vacuole. The inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths called villi. हम इन्हें villi कहते हैं. Large intestine is 1.5 meter in length. Next is the mouth contains tongue, teeth and salivary gland. Now let's study with true or false. Digestion of the starch starts in the stomach. The digestion होती है starch की, वो stomach में start होती है. That is false. Next is bile juice is produced by pancreas. It's false. कहाँ से प्रोड्यूस होती है? लिवर से. द टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा. इट्स ट्रू. इंसिजर टीथ इट्स यूज टू बाइटर. जो इंसिजर्स होते हैं उनसे हम बाइट करते हैं, कट करते हैं. इट्स ट्रू. म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम डैमेज. इट्स ट्रू. लास्ट इज ओसोफेगस. इट मस्कुलर ट्यूब कंटेनिंग throat to the stomach. It's true. Now, next is match the following question. Small intestine, longest part of the digestive system. Stomach, J-shaped thick wall. Food pipe, muscular tube connecting stomach to the throat to the stomach. What is assimilation? Utilization of nutrients in the food, and digestion is removal of waste from the mouth. Now let's study with the short answers question.
First is explain the different types of teeth. Incisors, scissors, canines and molars. मतलब premolars and molars. Then what are we? Finger-like structures जो आपको inner line पे देखने को मिलता है या outgrowths होती है. फिर आपको tooth दिखे पे short note लिखना है. Then what is assimilation? Explain the function of last and time, and last is that what do you mean by digestion? Next is long question. What digestion process takes place in the small intestine type? आपको किस process को describe करना है? Nutrition को और digestion in human. How does an amoeba gets food? Given diagram. आपको diagram देना है amoeba का. Now name the 4 types of teeth in humans. Then you have to write the HOTS that you have to do yourself. We have completed this chapter. Hope you understood. Now we'll meet in next class. That's all for today. Thank you.